Welcome to my channel CA Guides Academy, and today we are going to do a very important topic, that is accounting standard 3. Accounting standard 1 and 2 हम कर चुके हैं. This is accounting standard 3, cash flow statement. Okay, let's begin. Accounting standard 3 किसके बारे में बोलता है? About cash flow statements. Okay, जो ICAI इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया का दिया हुआ ये है, issued by ICAI. Okay, is primarily 3 किससे डील करते हैं? Describes the methods and format of presenting cash flow information. ठीक है, कैश फ्लो एक कंपनी का कैसे हो रहा है, हाउ इट इज़ द कंडीशन ऑफ द कंपनीज कैश at present, and provides guidance on the presentation of the cash flow statement. Okay, कैसे हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना है, कंपनी को कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रेजेंट करना है, उसके बारे में गाइडेंस AS3 प्रोवाइड करता है, विच इज़ इशूड बाय ICAI. राइट, लेट्स स्टार्ट. Objectives क्या है? The objective of AS3 is to provide information about changes in an entity's cash and cash equivalents. एक एंटिटी के कैश एवं कैश के इक्विवेलेंट्स का एक ड्यूरिंग अ पीरियड का क्या उसका चेंजेस है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन AS3 में दे रहा है. इट हेल्प्स यूजर्स इवैल्यूएट द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ अ कंपनी. एक कंपनी का क्या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, आज के दिन में वो कितना पैसा जनरेट कर सकता है, कैश उसके पास कितना है और कितनी अपनी ऑब्लिगेशंस वो पे कर सकता है. ओके, हाउ इट पेज इट्स एबिलिटी टू पे द ऑब्लिगेशंस इट हैज़, हाउ इट इन्वेस्ट्स इन न्यू वेंचर्स, कहाँ पे वो कंपनी का पैसा लगा सके, और पे डिविडेंड्स. राइट, सो एक कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन, और रादर वी कैन say the position financial strength of a company or a entity at a particular date, its ability to generate cash, its ability to pay its obligations, कोई भी नया obligations arise करते उसको पे कर सक रहे हैं कि नहीं, and invest in new ventures or pay dividends. Right, applicability. Now so let's do. AS3 is applicable to all entities that prepare financial statements in accordance with accounting standards. Okay, so accounting standards के according भी कोई भी financial statements तैयार करते हैं, जो भी company entity करता है, it has to do with certain exceptions like small and medium sized companies under certain conditions. कुछ conditions they follow करते हैं, certain small and medium sized companies they don't have to follow AS3, or they cannot also follow. They can willingly, or these all conditions are there. In that case, it is an exception for those companies. Right, otherwise it is applicable to all the companies or entities which prepare financial statements in accordance with AS3, accounting standard 3. Scope. What is scope? AS3 is applicable to all enterprises, requires the preparation of cash flow statements part of their financial statements. Financial statements हम जो बनाते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें हमें what we have to do, also have to draw the cash flow statement. तो cash flow statement जब हम पढ़ेंगे, we have to do some definitions जो यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कि कैश, कैश इक्विवेलेंट्स, कैश फ्लोज, what are they? कैश मतलब क्या? कंप्रेस कैश ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स. बैंक्स के पास जो पैसे रहते हैं, जो हम डिमांड में वी कैन विड्रॉ दैट मनी, एंड ऑल्सो द कैश इन हैंड. ओके, सेकेंड, कैश इक्विवेलेंट्स. व्हाट आर कैश इक्विवेलेंट्स? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सुनिएंगे. शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट्स ऑफ कैश. मतलब एक शॉर्ट टर्म पैसा हमारे पास जो रहेगा, जो हम हाईली लिक्विड, मतलब जब भी हम चाहें उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच आर इन्वेस्टेड मनी विच वी कैन get the money in the form of cash. Okay, it is readily converted into known amounts of cash and subject to an insignificant risk of change in value. इसमें कोई हमारा रिस्क भी नहीं रहेगा कि there will be a loss of interest like that. So those cash equivalents, those investments which are for meant for short term, कुछ छोटे समय के लिए जो इन्वेस्ट किया गया है, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में जब हमें ज़रूरत पड़ेगा कैश का, और जिसके लिए हमें कोई ज़्यादा पैसा भी लॉस नहीं करना पड़ेगा. What are cash flows? Inflows and outflows of cash and cash equivalents. पैसे के घुसना बिजनेस में, पैसा निकलना बिजनेस में, दोनों ही कैश फ्लोज के अंदर आता है. Cash and cash equivalents includes cash on hand and cash on demand deposits. Okay, cash equivalents are short-term, highly liquid investments that are readily converted to no amounts of cash and subject to insignificant risk of change in value. Example, जैसे कि क्या हो गया, ट्रेजरी बिल्स, मनी मार्केट फंड्स. ट्रेजरी बिल्स क्या है? हमारे पास जब रहेंगे बहुत कम समय के लिए, उसको हम जब भी चाहेंगे उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में. ओके, एंड देयर विल बी इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन द वैल्यू. राइट, presentation methods, there are two methods you can follow. दो मेथड फॉलो किए थे, एक डायरेक्ट मेथड एंड अनदर दूसरा जो है वो इनडायरेक्ट मेथड. कैश फ्लोज आर प्रेजेंटेड बाय मेजर कैटेगरीज सच एज कैश रिसीव्स फ्रॉम कस्टमर्स, कैश पेमेंट्स टू सप्लायर्स, एक्सेट्रा.
कस्टमर्स से हमें पैसा मिलेगा, सप्लायर जो हमें उनको पैसा हमें देना है, ठीक है, पेमेंट करना है. दिस कंसिडर्स मोर ट्रांसपेरेंट एंड इन्फॉर्मेटिव मेथड. एंड अनदर मेथड इज इनडायरेक्ट मेथड. दिस मेथड बिगिंस विद द नेट प्रॉफिट और लॉस एंड एडजस्ट फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस. ठीक है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट होता है ये, और उसमें हम क्या कहते हैं नॉन कैश ट्रांजैक्शन, जिसकी डिप्रिशिएशन हो गया, वैसे चेंजेस हम इसमें देते रहते हैं. एंड चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल टू कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. ओके, हम जब करेंगे वी विल डिटेल्स में अभी करें जस्ट नाउ. सो कैश फ्लो उसमें क्या आ रहा है हमारा वर्किंग कैपिटल. व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल? जो बिजनेस के डे टू डे खर्चे करने के लिए पैसे लगते हैं, उसमें ही कोई चेंज अगर आते हैं, ठीक है. सो दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. व्हाट आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़? एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, राइट. सो दो मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड. तो डायरेक्ट मेथड में सिंपल फॉलो व्हाट आर द पेमेंट्स टू बी मेड, व्हाट आर द मनी इज रिसीव्ड, ओके, एंड इट इज रिसीव्ड कंसिडर्ड मोस्ट ट्रांसपेरेंट, राइट. इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स. AS3 प्रोवाइड सिग्निफिकेंट गाइडेंस ऑन हाउ टू प्रेजेंट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स. जो भी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स है उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे वो भी AS3 में बता रहा है, ठीक है. इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड कैन बी क्लासिफाइड आइदर अंडर ऑपरेटिंग और फाइनेंस एक्टिविटीज़. इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं, ठीक है, एंड इंटरेस्ट हम रिसीव कर रहे हैं. जब हम रिसीव कर रहे हैं मतलब हम कोई चीज़ रिसीव मीन्स इफ़ वी हैव गिवन लोन टू समवन, इन दैट केस दैट पर्सन इज गोइंग टू गिव अस इंटरेस्ट ऑन दैट लोन, राइट. सो दैट interest we are receiving. Again, interest paid when we have taken loan, so we are going to pay the interest on that. So it has been decided or completely classified either in the operating or financing activities, which we are going to do little. Dividends paid are classified under financing activities, while dividends received are usually classified under investing activities. So यहाँ पे हम देखेंगे AS3 के अकॉर्डिंग 3 एक्टिविटीज़ आर मेनली डन. जो हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया जाता है, एक है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, the other is financing activities, and the third is the investing activities, ठीक है. अब dividends paid are classified under financing activities. हम अगर किसी को डिविडेंड दे रहे हैं तो वो क्या होता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में होता है, क्योंकि हम किसी से फाइनेंस ले रहे हैं तो वी आर गोइंग टू पे द डिविडेंड्स, राइट. एंड डिविडेंड्स रिसीव्ड यूजुअली क्लासिफाइड अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. हम कहीं पैसा इन्वेस्ट किए हैं अपना, तो वो जो हमें डिविडेंड देंगे, कंपनी का शेयर्स हम खरीदे हैं तो वहाँ पे जो हमें डिविडेंड मिलेगा दैट विल बी द डिविडेंड्स रिसीव्ड, एंड दे विल बी classified under the investing activities, right. Foreign currency cash flows arising from transactions in foreign currency should be recorded in the reporting currency by using the exchange rate at the date of cash flow. Yes, foreign currency cash flows, हम foreign country के साथ कोई import export का business है तो in that case there are foreign currency transactions, okay. तब हमें क्या करना है, we have to report in the currency by using the recorded in the reporting currency. जिस करेंसी में हम रिपोर्ट करें उस करेंसी में लेना है. एक्सचेंज रेट क्या लेंगे, ऑन द डेट ऑफ कैश फ्लो, जिस दिन कैश फ्लो हुआ है, आइदर कमिंग इन और कैश फ्लो आउट और गोइंग आउट कमिंग इन, दोनों का जिस दिन जो ट्रांजेक्शन उसी दिन का रेट लेंगे. एंड किस करेंसी में करेंगे, द रिपोर्टिंग करेंसी, रिकॉर्ड होगा इन द रिपोर्टिंग करेंसी, राइट. नॉन कैश ट्रांजेक्शंस क्या है, significant investing and financing transactions that do not involve cash flows. Example, acquisition of assets through finance, leases or equity issues. Equity issue किए है तो उसमें क्या हुआ, काफ़ी financial transactions हुए, उसमें assets हमें पैसा आना जाना नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स थ्रू फाइनेंस लीज, हम लीज में लेके फाइनेंस एसेट्स खरीदे हैं, या हम इक्विटी इशूज़ करके उसकी जगह में हमें कुछ एसेट्स मिला है, ठीक है. बट व्हाट इज़ हैपनिंग, यहाँ पे कोई भी कैश ट्रांजैक्शंस हुआ नहीं है, ओके. आइदर वी आर गिविंग द पार्टी टू द पार्टी, जिससे हम एसेट खरीदे हैं, सम शेयर्स ऑफ अ कंपनी और ओके, या कोई लीज में हम ले रहे हैं, बट हम उसको पैसा हमने कुछ दिए, ठीक है, जिसके लिए कुछ खरीदे हैं. नॉन कैश ट्रांजैक्शन शुड नॉट बी इंक्लूड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो इस टाइप के जो ट्रांजैक्शंस होंगे जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं लाएंगे. हाउ एवर दे शुड बी डिस्क्लोज एल्सवेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन इनका डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट है. सो दे शुड बी डिस्क्लोज्ड इन सम वे इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन द नोट्स, और यू हैव टू रिपोर्ट इन द पर्टिकुलर प्लेस रहेगा कहाँ पे किसी को स्पेसिफिक कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, बट इट्स इम्पॉर्टेंट, बट इट्स इन्फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट टू द कंपनी और द स्टेक होल्डर्स, हमें उसे डिस्क्लोज करने हैं, ठीक है, बट नॉट इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट. रिपोर्टिंग ऑफ कैश फ्लोज, एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट कैश फ्लोज ऑन अ ग्रॉस बेसिस, दैट इज separately for each activity except in certain of operating cash flows such as cash receipts and payments on behalf of customers when acting as an agent. Okay, हर एक्टिविटी को हमें अलग से दिखाना पड़ेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी,
हाँ, कुछ केस यहाँ पे रहेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में, ऑपरेटिंग में डे टू डे एक्सपेंसेस में, जैसे कुछ कैश रिसीव हुई या पेमेंट हुई ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स व्हेन एक्टिंग एज एन एजेंट के हिसाब से, तो दैट वी आर नॉट श्योर ऑफ दैट थिंग हाउ इट हैज़ टू बी रिपोर्टेड. सो इन दैट केस सर्टेन एक्सेप्शंस विल बी देयर, अदरवाइज हर एक्टिविटी को अलग से हमें शो करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ठीक है, बाय द एंटिटीज़. क्लासिफिकेशन कैश फ्लोज 3 एक्टिविटी में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया गया. व्हाट आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम पहले देखेंगे, ठीक है. प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज एंड अदर एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है. प्रिंसिपल रेवेन्यू, जो एक्टिविटी करने से हमारे बिजनेस चल रहा है, बिजनेस किस लिए हम कर रहे हैं, ओके, दैट इज़ द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. एंटरप्राइज का बिजनेस क्या है, जो हम बेच रहे हैं या हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ द मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़, ओके. दे आर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. अदर एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो नहीं है वो भी यहाँ पे आएंगी. फिर एग्जाम्पल्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, गुड्स कुछ बेचे उसके लिए हम कैश मिला. कैश पेमेंट्स टू सप्लायर्स, सप्लायर से रॉ मटेरियल्स खरीदे सामान बनाने के लिए, तो दैट वी हैव टू मेक सम कैश पेमेंट्स, दैट इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो वी हैव टू मेंशन. एंड कैश पेमेंट्स टू employees, those people who are working under a company or the employees of the company have to make the cash payments in the form of salary or wages, right? So all these are either coming under the operating activities. तो हम क्या पकड़ के रखेंगे, जो operating activities मतलब वो activities होंगे जो company के, those activities which are meant for the main revenue producing activities of the business. business किस लिए चल रहा है, उसका जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, those activities, okay. And some activities which are not for investing and financing, that also come here, right. Then we have investing activities. Investing activities किसको बोलते हैं, acquisition and disposal of long term assets and other investments not included in cash equivalents, okay. कुछ भी हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स के हिसाब से, एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स, कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं जो हमारे कैश इक्विवेलेंट्स नहीं है. कैश इक्विवेलेंट्स क्या थे, कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है जिसको हम चाहने से उसको कन्वर्ट कर सकते कैश में विदाउट एनी सिग्निफिकेंट रिस्क. अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में वो आएंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए हम जो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, जिसका पर्पस हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए, नॉट कैश इक्विवेलेंट्स, ओके. एग्जांपल्स, कैश पेमेंट्स हो गया प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी हम सेल किए तब हमारे पास जो पैसा आया. प्लांट इक्विपमेंट खरीदे, एक्वायर कोई प्रॉपर्टी. एंड कैश पेमेंट्स फॉर इन्वेस्टमेंट, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, कोई भी कंपनी के शेयर्स एंड डिबेंचर्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन दैट केस ऑल्सो हमें क्या है, दैट ऑल दोज एक्टिविटीज़, जैसे कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदा हमने, प्लांट खरीदा, इक्विपमेंट खरीदा, या हमने कोई बेचा, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, ठीक है. और कैश पेमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ अदर कंपनीज. तो दीज आर इन्वेस्टिंग कैपिटल एक्टिविटीज़ विच एक कंपनी कर रहा है अपने बिजनेस को चलाने के लिए. लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीद रहा है, इक्विपमेंट खरीद, प्लांट खरीद रहा है, या बेच रहा है, या बिजनेस किसी और कंपनी के शेयर्स एंड डिबेंचर्स में लगा रहा है, तो कि उनका बिजनेस का पैसा जो है उस पैसे में कोई उनको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल सके, ठीक है. सो दीज आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, थर्ड टाइप ऑफ क्या है, फर्स्ट हम की ऑपरेटिंग, सेकेंड हो गया इन्वेस्टिंग, थर्ड हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी. व्हाट आर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ दैट रिजल्ट इन चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द ओनर्स कैपिटल इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल कैपिटल एंड बोरोइंग्स ऑफ द एंटरप्राइज, ओके. मतलब क्या है, हमारा जो कैपिटल हमने बिजनेस में लगाया था, राइट, उस कैपिटल को हम बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस को हम एक्सटेंड करना चाहते हैं. इन दैट केस व्हाट वी विल डू, वी विल टेक फाइनेंस फ्रॉम अदर कंपनीज और फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस, सो दैट विल रिजल्ट इन द चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द ओनर्स कैपिटल. हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा, राइट, या कहीं से हम बोरो कर रहे हैं, ठीक है. तो दोज आर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. एग्जांपल्स, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशुइंग शेयर्स, कैश पेमेंट्स टू रिडीम शेयर्स, ओके. हम क्या करेंगे, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशुइंग शेयर्स, हम कैश अपना कंपनी के शेयर्स इशू किए, तो वो जो इन्वेस्टर्स ने जो इन्वेस्ट किया मनी, तो हमारे पास क्या कैपिटल हमारा बना, तो दे आर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ओके. इशू ऑफ शेयर्स, ओके, तो जो हम उससे कैश मिला हमें, दोज आर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. कैश पेमेंट्स टू रिडीम शेयर्स, शेयर्स को हमें रिडीम करना है, मतलब शेयर्स है जिसको हमें वापस देना है, ओके. एंड कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशुइंग डिबेंचर्स ऑल्सो, डिबेंचर्स हमने इशू किए कंपनी के, दैट ऑल्सो here comes it. So these are the financing activities. So हम पकड़ के चलेंगे, there are 3 types of activities as per cash flow statement. एक है operating activity, जो business के operating activities है, main purpose of the business, revenue producing activities जो होते हैं, ठीक है. सेकेंड है हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, ठीक है. और थर्ड है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, हमारे बिजनेस के कंपोजिशन को हम बढ़ाना चाहते हैं, या साइज ऑफ द कंपनी
जो इन्वेस्ट हम जो अपना ओनर्स कैपिटल उसका बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वी विल टेक फाइनेंस फ्रॉम द मार्केट. सो वी आर गोइंग टू बोरो सम मनी. ओके, तो दोज आर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. ठीक है, इशूइंग ऑफ शेयर्स, इशूइंग डिबेंचर्स, इवन कैश पेमेंट्स फॉर रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स. राइट. What are the benefits of AS3? हम AS3 क्यों कर रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्यों फॉलो कर रहे हैं? हेल्प्स इन्वेस्टर्स, creditors and other stakeholders understand the liquidity, solvency and financial flexibility of a company. कैसे? जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे हमारी कंपनी में, जो क्रेडिटर्स हमें सामान सप्लाई करेंगे, ठीक है, एंड अदर स्टेक होल्डर्स आर हु आर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस ऑफ द कंपनी. ठीक है, जिसको हमारी कंपनी के बिजनेस के बारे जानना है, हमारा लॉस है या गेन है, वॉट एवर इट इज़, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि हमारा कंपनी लिक्विड कितना है, वेदर इट इज़ सॉल्वेंट और नॉट, वेदर इट इज़ फाइनेंशियली stable or not. ठीक है, so it helps investors, creditors and other stakeholders understand the liquidity, solvency and financial flexibility of company. Right. तो सेकेंड बोलेंगे assist in determining the company's ability to generate future cash flows. फ्यूचर कैश फ्लोज कंपनी जनरेट कर सकेगा कि नहीं, वो पता चलता है हमें फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 अगर फॉलो करते हैं. कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में पता चलता है बिजनेस कितना प्रॉफिट देगा हमें फ्यूचर में. राइट. अलाउज फॉर द कंपैरिजन ऑफ कैश फ्लो परफॉर्मेंस ओवर डिफरेंट पीरियड्स. लास्ट ईयर में क्या बिजनेस था, इस साल में क्या बिजनेस हुआ है, हमारा कितना प्रॉफिट है, तो हम 3 साल में अगर हम कंपेयर करना चाहेंगे, दैट इन्फॉर्मेशन वी कैन डू बाय द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑल्सो. ठीक है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस, स्पेशली फॉर स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स मतलब हम जिसको हमारे बिजनेस की बारी इन्फॉर्मेशन से कोई फ़ायदा होगा. ठीक है, हु नीड एक्यूरेट एंड ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ. Here's why AS3 matters. Insight into liquidity and cash management. Okay. AS3 provides crucial insights into a company's liquidity position. Liquidity position कंपनी का क्या पोजिशन है, लिक्विडिटी मने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसा है. अनलाइक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या बताता है कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ उसमें, या उसका बैलेंस शीट में उसका एसेट्स लाइबिलिटीज क्या पोजीशन है, विच रिफ्लेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ एक्रूअल बेसिस. ठीक है, एक्रूअल बेसिस मतलब जो जिस साल में एक्वायर किया है. ठीक है, एक्रूअल मीन्स जो बिजनेस का पोजीशन है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, बैलेंस शीट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का है बिजनेस का. एक्रू मने दैट इज एक्रूड मने it is for that particular year. Okay, it has not been received or it has not been paid. Okay, that is what we mean by accrued. The cash flow statement reveals actual cash movements, but actual picture क्या है वो हमें कहाँ से दिखता है, फ्रॉम द कैश फ्लो स्टेटमेंट. ओके, कितना कैश फ्लो हुआ, कितना कैश फ्लो गया बाहर, बिजनेस से कितने पैसे निकले, बिजनेस पे कितने पैसे आए, पूरा एक्चुअल जो रियल पिक्चर हमें दिखता है कहाँ से, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे. लेकिन हम जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या बैलेंस शीट करते हैं वो हमारे एक्रूअल बेसिस में रहता है. ठीक है, कुछ पैसा हमें मिलेगा या कुछ पेमेंट हमें करने हैं, तो वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या इसमें आएंगे कैश बैलेंस शीट में. बट कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है रियल पिक्चर हमें दिखता है, जहाँ से हमें पता चलता है बिजनेस का क्या पोजीशन है. राइट. This helps business and stakeholders assess whether a company has enough cash to meet its obligations, pay salaries or invest in growth. Yes, employees को उन्हें कंपनी में जॉब करना है या इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने हैं, या वॉट एवर ऑब्लिगेशंस, वो बिजनेस का क्या पोजीशन है आज के दिन में, whether it is able to pay its स्टेक होल्डर्स, वेदर इट्स ऑब्लिगेशंस जो है उसको पे कर रहा है कि नहीं, सैलरी एम्प्लॉयज़ को पे कर सक रहा है कि नहीं, इन्वेस्ट इन ग्रोथ में वो इन्वेस्ट कर सकेगा कि नहीं. तो पूरा इंसाइट हमें लिक्विडिटी पोजीशन एंड द कैश मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी AS3 हेल्प करते हैं बताने के लिए. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 दैट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट. Second, understanding cash generation. Investors, analysts and lenders use cash flows information to evaluate how efficiently a company generates cash from its operating activities. Yes, एक business कितना अपने डे टू डे ऑपरेशन से कितना पैसा वो ला रहा है, हाउ मच मनी इट इज़ गेटिंग, हाउ मच प्रॉफिट इट इज़ incurring, okay, from the into business. Okay, that we get a picture from the, or we get a idea from the कैश फ्लो स्टेटमेंट. इन्वेस्टर्स जो है जो बिजनेस में पैसा लगाएंगे, एनालिस्ट्स एंड द लेंडर्स यूज टू कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमें सप्लाई करेंगे. ठीक है, एफिशिएंट कंपनी कितना कैश जनरेट कर रहा है, कहाँ से पता चलेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से. प्रॉफिटेबल बिजनेस में स्टिल फेल इफ दे कैन नॉट कन्वर्ट प्रॉफिट इनटू कैश. ओके, प्रॉफिटेबल बिजनेस मतलब बिजनेस का जिसका प्रॉफिट है लेकिन उसके पास लिक्विड कैश नहीं है अपने ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए, उसके पास इतना लिक्विडिटी नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है बिजनेस को चलाने के लिए. ठीक है, उसको कन्वर्ट. तो AS3 हमें हेल्प करता है, फोकस कर सकते हैं कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है, रियल पिक्चर ऑफ द बिजनेस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल हेल्थ. इट्स
position, how it can meet obligations, and what is its cash position. Okay, तो सब कुछ हमें कहाँ से पता चल रहा है? From the AS, that is cash flow statement. Then financial health assessment, AS3 highlights the sources and uses of cash. कहाँ से कैश आ रहा है and कहाँ हमें कैश को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या खर्चा कर रहे हैं, which helps in assessing a company's financial health. It together shows whether cash is coming in from core operating activities, good sign, or through borrowing and asset sales, potentially unstable, unsustainable. Okay, हम अगर देखेंगे बिजनेस का जो फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, कैसे पता चलेगा? अगर बिजनेस का कोर कैपिटल एक्टिविटी जो है, जो बिजनेस वहाँ से वो उसको पैसा आ रहा है, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आ रहा है, मतलब इट्स अ गुड साइन दैट द बिजनेस इज ग्रोइंग. ओके, बट अगर वो पैसा आ रहा है बोरो करके, बाहर के मार्केट से वो बोरो कर दूसरे इन्वेस्टर से वो पैसा ले रहा है या एसेट को बेच के ले रहा है, तो उसका पोजीशन स्टेबल नहीं है, तो इट इज़ अनसस्टेनेबल कि बिजनेस पोजीशन अच्छा नहीं है. तो फाइनेंशियल हेल्थ बता सकता है, AS3 में हेल्प कर सकता है टू नो दैट द बिजनेस इज टू बी सस्टेनेबल और नॉट, और इट इज़ अनसस्टेनेबल. ओके, इवेल्यूटिंग बिजनेस सस्टेनेबिलिटी. यस, अभी तो हमने क्या कि उसका ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से पता चल जाएगा कि बिजनेस का पोजीशन स्टेबल है या नहीं है, वेदर इट कैन डिपेंड ऑन इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फॉर डे टू डे एक्सपेंस एज वेल एज फॉर रनिंग फ्यूचर एंड जनरेटिंग अ प्रॉफिट और नॉट. ओके, अगर वो नहीं कर सकता है, पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं आ रहा है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, देन इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में अगर वो उसका ज़्यादा डिपेंडेंट है, देन वी कैन से दैट बिजनेस इज नॉट टू बी सस्टेन्ड. ओके, फिफ्थ है इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग. यस, अभी कोई इन्वेस्ट करना चाहता है हमारी कंपनी में, तो उसको क्या डिसीजन चाहिए? इन्वेस्टर्स लर्न कैश फ्लो स्टेटमेंट्स टू वैल्यू द इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ऑफ अ कंपनी. कंपनी अपने ग्रोथ के लिए पैसा कहीं लगा रहा है कि नहीं, कंसिस्टेंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हो रहा है कि नहीं, दैट वी कैन कम फ्रॉम द बिजनेस ऑफ द कंपनीज कैश फ्लो स्टेटमेंट. ओके, स्टेबल पोजीशन है कि नहीं, बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं, इट मेकिंग एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. बिजनेस अगर प्रॉफिटेबल है, उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि उसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ उसके पॉजिटिव दे रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ऑफ अ कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट में लगाएगा तो कि उसका ग्रोथ होगा. राइट, अगर उसका ऑपरेशन से उसका प्रॉफिटेबल बिजनेस दिख रहा है कि इट डज नॉट हैव मच मोर मनी फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बट फ्रॉम द फाइनेंसिंग इट्स बिजनेस इज ग्रोइंग, इन दैट केस the investors will not like to invest in that business. but अगर वो business grow कर रहा है अपने बलबूते में, उसका cash flow अच्छा है, इनफ्लो उसका आ रहा है फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ रादर देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, तो इसका इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा स्कोप है, एंड दैट केस वी कैन से द कंपनी इज गोइंग टू ग्रो इन द फ्यूचर. So investor will be more likely invest in that type of company. Reporting cash flows. ओके, अभी हमें रिपोर्ट का डायरेक्ट मेथड हमने जस्ट अभी किया है. कैश फ्लो मेथड प्रेजेंट्स द मेजर क्लासेस ऑफ ग्रॉस कैश रिसिप्ट्स एंड ग्रॉस कैश पेमेंट्स, ठीक है. इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, एडजस्टमेंट नेट प्रॉफिट और लॉस को पहले दिया जाता है, उस पर हम क्या करते हैं, जितना भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है तो उसको वहाँ से हम निकालते हैं, ठीक है. नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को वहाँ से हम डिडक्ट करके दिखाते हैं, कोई भी एक्रूअल है, कुछ डिफरल्स है जो फ्यूचर में हमें पेमेंट करने हैं, ठीक है. तो दोज एक्शंस वी हैव टू बी टेकन डिपेंडिंग ऑन द नेट प्रॉफिट एंड लॉस, बट मेनली वी फॉलो द डायरेक्ट मेथड, जिस ग्रॉस रिसिप्ट कैश रिसिप्ट कितने हुए, ग्रॉस कैश पेमेंट कितने हुए, एंड दैट आर डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. So direct method is more likely followed. Foreign currency cash flows. Okay, cash flows arising from transactions in foreign currency should be recorded in enterprises reporting currency using the exchange rate at the date of the cash flow. पैसा आया या गया, हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, दैट व्हाट वी विल डू ऑन द डेट ऑफ द कैश फ्लो, ठीक है, उस दिन का एक्सचेंज रेट लेंगे, लेकिन रिपोर्ट किस में रिकॉर्ड किस में करेंगे, रिपोर्टिंग करेंसी में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है. एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स शुड बी classified as arising from operating, investing or financing activities as appropriate and separately disclosed. Okay, extraordinary items अगर कुछ आते हैं जो हर वक्त बिजनेस में नहीं आ रहे, इन दैट केस व्हाट वी विल सी वेदर इट कमिंग अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, वेदर इट इज कमिंग अंडर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग. ऑपरेटिंग होगा अगर वो आता है बिजनेस के डे टू डे बिजनेस के ऑपरेशन से सेल करके आ रहा है या सर्विस प्रोवाइड करके. इन्वेस्टिंग बिजनेस अगर कोई पैसा कंपनी कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है अदर देन कैश इक्विवेलेंट्स, ओके, लॉन्ग टर्म एसेट्स एक्वायर कर रहा है या लॉन्ग टर्म एसेट्स सेल कर रहा है, ओके, ठीक है. फाइनेंसिंग, इशूइंग ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी और रिडेम्पशन शेयर्स पेमेंट कर रहा है, तो वी हैव टू सी विच ग्रुप इट इज़ फॉलोइंग, ठीक है, एंड उसको सेपरेटली अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर दिखाना है.
डिस्क्लोजर, द एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज अलॉन्ग विद कमेंट्री बाय मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट को एक कमेंट देना है, सिग्निफिकेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हेल्ड बाय द एंटरप्राइज दैट आर नॉट अवेलेबल बाय यू फॉर इट बाई यूज़। मैंने अभी क्या है, एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज, एंटरप्राइज को अपने डिस्क्लोज करना है अलॉन्ग विद द कमेंट्री बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को कमेंट देना है, इसके साथ कैश फ्लो सिग्निफिकेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बिजनेस का, एंटरप्राइज का, एंटिटी का कितना कैश है या कैश इक्विवेलेंट्स पकड़ कर रखा, दैट नॉट अवेलेबल फॉर यूज़ बाई इट, उसके पास अवेलेबल है, उसको यूज़ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ है तो उसको भी डिस्क्लोज करना है। एंड स्टैंडर्ड रिक्वायर्स एडिशनल डिस्क्लोजर्स, क्या क्या डिस्क्लोजर है, रिकंसिडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स टू द इक्विवेलेंट अमाउंट रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट। यस, बैलेंस शीट में जितना दिखाया है हर हेड के अंदर उतना ही हमारा रिकंसिलेशन करना पड़ेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स उतना है कि नहीं, इसके हम बैलेंस शीट में क्या दिखाता है, वी शो बैंक, यू हैव सीन बैंक, हम एसेट्स साइड में क्या दिखाते हैं, वी शो कैश एंड बैंक, तो वो कैश एंड बैंक हमारे यहाँ से टैली होने चाहिए, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ टैली होने चाहिए। डिटेल्स ऑफ सिग्निफिकेंट नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस, नॉन कैश इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट हुआ है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी ट्रांजैक्शंस हुए, जो डिटेल्स हमें उसका भी देना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट है बट नॉन कैश इन्वेस्टिंग, मैंने कैश में इन्वेस्ट नहीं किया गया, फाइनेंस नहीं किया गया, इन दैट केस वी हैव टू मेंशन दैट ऑल्सो, डिस्क्लोजर भी देने हैं, ठीक है। एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज़ ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस अगर लगाया गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हमारे पास है लेकिन जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते बाय द एंटरप्राइज, ठीक है, वो हमें मेंशन करना है विद द कमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट व्हिच वाज स्टेटेड इन द फ्रंट। सो दीज आर एडिशनल डिस्क्लोजर्स व्हिच हैव टू बी गिवन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 3 एक्टिविटीज़ देखने हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। उसके बिना कुछ होगा एक्सटेंडर आइटम्स, उसको लाइकवाइज हमें डिवाइड करके किसके अंदर जाना चाहिए, राइट, डिपेंडिंग ऑन द डेफिनेशन इट फॉल्स, ठीक है। और उसके बाद में हमें डिस्क्लोजर देना क्या क्या चीज़ के बारे में, रिकंसिलेशन ऑफ कैश एंड कैश, जो हमारे बैलेंस शीट के साथ मिला के देखना है मिल रहा है कि नहीं। सेकंड, कोई भी डिटेल्स नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस हुए उनको भी मेंशन करने हैं, उनके डिटेल्स देने हैं। थर्ड, कोई भी रेस्ट्रिक्शन अगर है, कोई भी पैसे पे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पे जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो हम क्या बोल रहे हैं, एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज अलॉन्ग विद द कमेंट विद द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट वहाँ पे एक अपना कमेंट देगा, वाई सिग्निफिकेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है एंटरप्राइज के पास जिसको हम अवेलेबल है हमारे पास बट वी कैन नॉट यूज इट, ओके। तो दिस वाज अ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ये हमें डिस्क्लोज करने हैं, ठीक है। कंक्लूशन, सो वो हम देख रहे हैं कंक्लूशन क्या बता रहा है, AS3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी अंडरस्टूड इट, क्यों हमें बता रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बता रहा है, ठीक है। तो देखते हैं AS3 enhances the comparability of cash flow statements by setting out consistent standards for the presentation and disclosure। yes, जो एक स्टैंडर्ड फॉलो किया जा रहा है, अगर ईयर 2023-24 पकड़ लेते हैं, 24-25, 26-27 पकड़, तीनों साल का हम कंपेयर करेंगे इन 28-29, what we will get comparability of 3 because we are following the same consistent standards and the presentation style is the same and disclosure also the same way, so it is help in comparable to the cash flow statement of the setting out the standards fixed, okay। This helps users of financial statements to assess the enterprise ability to generate cash and cash equivalents, कितना वो जनरेट कर सकते हैं, बिजनेस आगे यूटिलाइज कर सकता है, कैश कितना, उसका पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसका क्या है, whether it is able to meet its obligations not, whether in the future it can grow or not, ठीक है। AS3 is a vital accounting standard that enhances the transparency of a company's financial reporting। yes, financial reporting हम जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, जो स्टेक होल्डर्स है, जो इन्वेस्टर्स है कंपनी पे, जो जिसका इंटरेस्ट है, कोई भी स्टेक होल्डर जिसका इंटरेस्ट है वांट्स टू हैव वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, तो एक ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन अगर नहीं मिलेगा तो हाउ कैन ही डिसाइड वेदर ही विल इन्वेस्ट इन द मनी, इन्वेस्ट मनी इन दिस कंपनी, वेदर द कंपनीज फाइनेंशियल health is good or not। So AS3 is vital accounting standard. It enhances the transparency of a company's financial reporting by requiring a clear and structured presentation of cash flows, cash inflow, cash outflow. It enables stakeholders to assess the financial health and operational efficiency of a company's effectively। Hope ये आपको clear है। So AS3 gives a clear-cut idea about a company's performance, its financial stability, how it is operating, whether it is getting the money from the operating activities or not, whether it is depending on the financing activities। तो क्या होगा, वो sustainable नहीं होगा क्योंकि it is depending on the what फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, मतलब इशू कर रहा है शेयर्स, बाहर से पैसा आ रहा है, अपना हेल्थ नहीं, अपना कैपिटल बढ़ा रहा है बोरो करके मार्केट से, तो उसका पोजीशन उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। सो लोन एंड डेब्ट्स में जा सकता है वो कंपनी,
ठीक है. But if it's investing in the, it has its own money from the operating activities of the business. So we will say the business is sustainable, उस पर हम invest कर सकते हैं without any tension. So from the shareholders, various stakeholders, investors, everybody have a clear cut information which is transparent, which is given by AS3, that is a cash flow statement. Hope this is very clear to you. Thank you. Just like the vulture, keep your focus on achieving your goal, right? Thanks for watching.